Hello everyone and welcome to the Animation Wizard. So आज हम देखने वाले हैं actor in Unreal Engine. Okay, so what is the actor in Unreal Engine? So in Unreal Engine, actor is the most basic and important object you can place in the game levels. Okay, uh, actor is a object that exists in the game world, like a camera, a light, static mesh, any visual effects. Okay, it's a simply if you want to describe the actor, it's a very simple thing. That means कि everything you drag into a level in Unreal Engine, it's an actor. So देखते हैं कि कैसे आप Unreal के अंदर एक्टर क्रिएट कर सकते हो एंड उसको कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो आप. ओके, सो सबसे पहले हम जंप करते हैं अपने Unreal Engine एडिटर के ऊपर. ओके, so this is your third person level. So it's a default my taste and it's a default third person level. So what I will do, I will create a blank scene. Blank scene, that means a default scene in Unreal Engine. So what I will do, I will just file and create a new level. And here we have a different options: the open world, empty world, and the basic and empty level. Okay, so what I will do, I will click on the basic one, just create this. So it's asking for the current one that you, if you want to save or don't save. So I will keep it don't save. Yeah. Okay, now here you can see, so this is your default empty level. So you can see here we have some actor. So how can you find out? Just check the your outliner. Yeah, so in outliner you can see there are different types of default actors. Just you can see the it's a light. So as I mentioned, the light is my actor. We have some exponential height, fog, atmosphere, skylight also. We have some floor. This floor is my actor. That is the you can say it's a rectangular box. Okay, so here we have a player start, where my player will start when I will play this, and player will start. So this is the player start. This is my actor. So this is the in my scene, this is the default uh, actor. So what I will do, I will create a completely empty level, and from there we'll create everything from the scratch. Okay, and we'll modify the my actor. So what I'll do, I'll just click the file and new level, and I will took empty level, completely empty level. Okay, so I will create. Yeah, now you can see this. There is nothing in my outliner. So you can see here in your viewport, everything the completely blackout. It's a grid. So what I will do, I will create a actor. So we'll create a different types of actor. Like light, we'll create a, we can create the camera, we can create some shapes. Okay, so first of all, what I will do, I will just click here the quickly add to the projects, and here you will find out the different types of actor. Like we have a light, we have a shapes, we have some cinematics and visual effects, geometry also. So what I will do, I will create first a shapes. Sorry. So here, if I will click on the cube, just click the cube. So you can see आपके viewport में there is a cube, and here in outliner you can check this is the cube. So this cube, this shape is your actor. Okay, so just check this detail panel, and if I will select the actor, this shape, this cube, and here we have different options. Like we have a location option, we have a rotation option, we have a scale value. So by default, as I create this shape, you can see in location panel, here we have some value in X, Y, Z, and you can check in your Gatsby handle. You can this handle, Z is the upside, green the Y, and X is the red. So this is the red is the X one, green is the Y, and blue the Z one. Okay, so first of all, what I will do, we have, if I will change the value, then here we have a reset value. So what I will do, I'll just click this reset.
So my shape, my cube on 0 0 position. Okay, the starting position. So you can just reset, or you can just click and change the value 0 0. Okay, so I will arrange this actor. So I will press F, the focus. Okay, and I will scale it. So how can I scale? So we have a scale value, and here the different types of scaling option. If I will log this, so entire value the log. Okay, so what I will do, I will select this, and अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ, सपोज आप देखो एक्स एक्सिस, एक्स जो स्केल का वैल्यू, स्केल ऑप्शन में मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, बट मैंने लॉक करके रखा है उसको। तो अगर मैं एक्स एक्सिस एक्स में जाके एंड मैंने वहाँ पे 5 कर दिया, तो वो एक्स वाई जेड तीनों में चेंजेस होंगे। इफ आई प्रेस इंटर, सो नाउ कैन सी दिस, यहाँ पे एक्स में भी चेंज हुआ, वाई में भी चेंज हुआ, एंड जेड में भी चेंज हुआ। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज अ लॉट, विल कीप इट 50। सो यू कैन सी द एक्स एक्सिस में 50 चेंज हुआ, वाई में भी 50 चेंज हुआ, एंड जेड में भी चेंज हुआ। सो जेड इज द हाइट वन। सो व्हाट आई विल डू, आई विल अनलॉक दिस एंड विल चेंज ओनली वन। So now you can see this, my platform, the shape. I will modify the symbol box to the platform. Okay. So अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लाइट भी नहीं है ना, सीन में कोई लाइट नहीं है, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है, एम्बिएंट दिख रहा है। तो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू, इफ I will click here in the lit option and unlit option. Okay, suppose this is the lit option, that's why it's look ambient. If I will unlit, okay, and then I will lit it. Okay, so यहाँ पे कोई लाइट नहीं, इसलिए मुझे मेरा ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। ओके, सो अगर आपके सीन में भी फिलहाल कोई लाइट नहीं है तो उसको देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एम्बिएंट मोड में कर सकते हैं, एंड फॉर दैट जस्ट यूज द अनलिट ऑप्शन। सो आप यहाँ से अपना सीन को एकदम एम्बिएंट शेप में देख सकते हो। दैट मीन्स कि इट्स अ फ्लैट, है ना, जैसे एल्विडो मैप्स होते हैं कुछ वैसा दिखाई पड़ेगा, है ना, कोई डेप्थ नहीं रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि लाइट इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। नाउ अब मैंने इसको, जैसे यहाँ पे सपोज मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया दिस एक्टर। सो अभी देखिए इसमें एक्टर में क्या ऑप्शन है, मैं इसको चाहे तो और शेप मुझे चेंज करना है, इसको 50 है, मैंने इसको 75 कर दिया, थोड़ा और बड़ा कर दिया, या इंडिविजुअली अनलॉक करके आप इसको इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो। Sorry. Then we have a static mesh option here. Okay, स्टैटिक मेश, एंड उसके पहले आप देखो यहाँ पे मोबिलिटी ऑप्शन है, जो कि मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगा, बट एक सिंपल सा है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोबिलिटी का मतलब है कि जो गेम के अंदर आपका जो सीन है वो स्टैटिक रहने वाला है, या मूवमेंट करने वाला है, या दोनों होने वाला है। इफ द योर ऑब्जेक्ट विल स्टैटिक जस्ट लाइक एनी वॉल, जो कि सीन में एक जगह पे रहने वाला है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होने वाला है, विल कीप इट स्टैटिक। अगर वो मेरा ऑब्जेक्ट जैसे सॉरी कोई स्फेयर है जो कि मूवमेंट उसके अंदर होने वाली है, तो आई विल कीप इट मूवेबल, एंड देयर इज नो फिक्स थिंग कि वो स्टैटिक होने वाला ऑब्जेक्ट या मूवमेंट होने वाला है। इन सीन में वो चेंज हो सकता है कभी भी, तो आप उसको स्टेशनरी रख सकते हो। ओके, सो फॉर नाउ आई विल कीप इट स्टैटिक। देन हियर वी हैव इस ऑप्शन स्टैटिक मेश। सो स्टैटिक मेश दैट मीन्स कि इट्स योर डिफॉल्ट मेश। ओके, एंड इसकी जगह पे मैं अनरियल में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने अनरियल में बाहर से कोई ऑब्जेक्ट या एसेट्स लेके आए हैं, या आपने कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, या इनबिल्ड अनरियल के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट है, तो आप इसकी जगह पे प्लेस कर सकते हो। सपोज स्टैटिक में मैं यहाँ पे क्यूब पे क्लिक करता हूँ, एंड हियर वी हैव अ डिफरेंट ऑप्शन लाइक सिलेंडर, वी हैव अ कोन, तो इसकी जगह पे वो चीज़ प्लेस हो जाएगी। ओके, तो आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हो। देन उसके बाद हियर वी हैव सम मेटल ऑप्शन। तो कोई आपने मेटल बनाया है, या कहीं से आपने इंपोर्ट किया है, या आपने लाया है, तो आप यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी मेटल असाइन कर सकते हो। ओके, सो यस, मेटल हम कुछ लेक्चर्स के बाद देखने वाले हैं, या आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे मैंने एक एक्टर क्रिएट कर लिया। अब इसके ऊपर कोई दूसरे शेप्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। सपोज मुझे कोई स्फेयर क्रिएट करना है, so what I will do, I will just click this, quickly add to the project, and here we have a shape option, and I will click the sphere. Okay, so my sphere is there. So again, what I will do, I will just click the reset button, and you can see my sphere is in center.
Again, I will log the scale value and change the value around 25. So now you can see this. Okay. नाउ अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सब कुछ फ्लैट दिख रहा है, जैसे मैंने बोला ना एम्बियंट दिखाई पड़ रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका इंट्रैक्शन कैसे करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको बेटर फील करने के लिए मैं इसमें कुछ लाइट और इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ, है ना। तो लाइट भी हमारा एक एक्टर है, तो जस्ट जहाँ से हमें कुछ चीज़ों को ऐड कर रहे हैं मैं वहाँ से क्लिक करता हूँ एंड लाइट, सो आई कैन ऐड द लाइट एक्टर इन माई व्यू पोर्ट। सो जस्ट क्लिक द लाइट एंड सपोज मैंने यहाँ से कोई डायरेक्शन लाइट पे क्लिक कर दिया, विल एक्सप्लेन द डायरेक्शन लाइट लेटर ऑन, जस्ट क्लिक। ओके, नाउ प्रेस मूव टूल W, okay, and press G. So if I'll press G, you can see my light and my Gazmo handle on light. Okay, so आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है मुझे लाइट का, है ना, क्योंकि आपने जो मोड है ना आपने अनलिट किया हुआ है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ लिट, नाउ कैन सी, तो लाइट का इफेक्ट आपको सीन में दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो आपने यहाँ पे सीन में लाइट ऐड कर लिया। एंड अगेन वी हैव अ ट्रांसफॉर्म टूल लाइक मूव, रोटेट एंड स्केल। So this is my move tool and I will press E for rotation, so I can rotate, so you can see light in your scene. Okay, और भी एक्टर में यहाँ से यूज कर सकते हैं। I'll just click here and you can see we have a light, we have a shapes and some cinematic like camera and some media played and visual effects. So I will add some visual effects like sky atmosphere. Okay, so just click and drag. Now you can see the sky atmosphere in your scene. Okay, और भी चीज़ हम ऐड करते हैं यहाँ पे, जस्ट क्लिक एंड visual effects, volumetric cloud. Okay, so I will add some cloud. Now you can see this, so some cloud in your scene. And one more option, one more actor I will add, so like visual effects and I can add exponential height fog. Yeah, so you can see this, your environment is ready and you can check your outliner. There is a cube actor, we have a directional light actor, height fog actor, sky atmosphere, sphere and some volumetric cloud. Okay, so मैंने अपने सीन में कुछ एक्टर्स ऐड कर लिए। अब आप देखो, जैसे मैंने इस स्फेयर को सिलेक्ट करते हैं, दिस एक्टर, मुझे इसको सीन में ऐड करना है, मतलब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इसको थोड़ा स्केल करना है, इसको सीन के ऊपर लेना है। देन वी हैव अ मूव टूल, सो आई जस्ट चेंज टू मूव टूल एंड W एंड विल टेक इट आउट। ओके, एंड ये साइज इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी बड़ी लग रही है, तो अगेन आई विल स्केल। तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं R, एंड यहाँ से आप स्केल कर सकते हो, या फिर आप डिटेल पैनल में जाइए एंड हियर द लॉक बटन एंड यहाँ से आप लॉक उसको स्केल कर सकते हैं। जैसे मैंने 15 किया, अदरवाइज मैंने 5 कर दिया, सो यू कैन सी। ओके, तो मैंने एक्टर को यहाँ पे सीन में ऐड कर दिया। अगर मैं इस एक्टर को चाहता हूँ इस एक्टर को एकदम प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेस करना, सो देयर इज अ सिंपल शॉर्टकट, just press this actor and press key ind, sorry, ind in keyboard. Okay, just press ind and you will see it will place on the platform. Okay, suppose I will copy alt and drag, I can copy my actor. Okay, और जैसे मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने इंड प्रेस किया तो जो भी नीचे उसके प्लेटफॉर्म आएगा उसके ऊपर वो स्नैप हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जैसे मैंने इंड प्रेस किया इसके लिए, सो आप देखो वो इस ऑब्जेक्ट के साथ स्नैप होता है, उसका कोलाइडिंग वैल्यू जितना रहेगा वहाँ पे जाके वो ऐड होगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, प्रेस इन, तो वो प्लेटफॉर्म के साथ स्नैप हो जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल वे कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे सरफेस पे प्लेस कर सकते हो। तो ये मैंने एक्टर यहाँ पे, और ये डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, मैंने कुछ भी बाहर से कॉल नहीं किया है। जितनी भी चीज़ें, जो भी प्लेटफॉर्म है, आप वो बॉक्स था मैंने उसको सीन में ऐड किया, स्फेयर को मैंने ऐड किया, लाइट को ऐड किया, एटमॉस्फेयर को ऐड किया, स्काई को ऐड किया। ओके ओके, आई विल ऐड अ shape and I will add a cube. So you can see this, if I will press F I can focus,
I can move it with the help of W. Press F, focus, press in. सॉरी ओके, तो जैसे ही इंड प्रेस करोगे आप, वो ग्राउंड के ऊपर स्नैप हो जाएगा। अब इसको आप रोटेट कर सकते हो। सपोज मैंने इसको रोटेट कर दिया एंड यू कैन सी कुछ मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको रोटेट किया एंड प्रेस W, तो आप देखो उसका जो हैंडल है ना, अगर मुझे उसको अभी मूव करना है साइड में, तो जो मेरा गैजमो हैंडल है वो उसको प्रॉपरली मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म चल रहा है, दैट मीन्स कि वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। जो आप पूरे सीन का जो हैंडल है, एक्स जो डायरेक्शन है वो उसके अकॉर्डिंग है, बट मुझे जाना है दिस साइड, है ना, बॉक्स के अकॉर्डिंग जाना है। तो यहाँ पे आपको जो आपका गैजमो हैंडल है उसको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एंड लोकल। तो अभी वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक हियर अकॉर्डिंग टू लोकल। लोकल दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट, your actor. Now I can move it here and there. Okay, and again if you want to make it according to world, so I will just click and this is according to world. Okay, so आप इस तरीके से एक्टर का जो एक्सिस है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ अब इसमें मैं कुछ और चीज़ें ऐड करता हूँ। जैसे मुझे इसका पिवट पॉइंट चेंज करना है, जो भी मैं एक्टर ऐड कर रहा हूँ, तो यस मुझे इस बॉक्स, सपोज मैंने एक इसको डिलीट कर देते हैं एंड आई विल क्रिएट अ न्यू शेप एंड क्यूब। ओके, प्रेस इन, स्नैप। अब मुझे इसको रोटेट करना है, तो आप देखो अगर ये मैं रोटेट करने जाऊँ तो ये सेंटर से रोटेट होगा, है ना। तो मुझे अगर इसका पिवट पॉइंट चेंज करना है इस ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो जो पहला ऑप्शन है, मैं जैसे मूव टूल W प्रेस किया एंड आप उसका जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे मैं मिडिल माउस से प्रेस करता हूँ एंड उसको मुझे जहाँ पे प्लेस करना है उधर मैं प्लेस करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। सपोज मैं उसको इस साइड से देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, आप देखो मैंने इधर प्लेस कर दिया। तो प्लेस कैसे करना है, ध्यान देना, आप मिडिल माउस से आपको प्रेस करना है एंड आपको उस एक्सिस में ड्रैग करना है। तो आप देखो सिर्फ आपका हैंडल ही मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है। जैसे आप माया यूज करते हो तो आप वहाँ पे डी प्रेस करके आप करते हो, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मिडिल माउस प्रेस किया एंड आई कैन चेंज द पिवट पॉइंट हियर, या आप ऑब्जेक्ट की जिस लोकेशन पे रखना चाहते हो आप वहाँ पे रख सकते हो। एंड देन आफ्टर दैट राइट क्लिक एंड हियर वी हैव अ ऑप्शन पिवट एंड सेट एज पिवट ऑफसेट। यस, तो जैसे ही मैंने सेट एज ए पिवट ऑफसेट किया, आप देखो उसका जो पिवट पॉइंट है वो कंफर्म हो गया कि आप कहाँ पे रखना चाहते हो। तो जैसे मैंने अभी इसको सिलेक्ट किया एंड देन आई विल सेलेक्ट दिस, तो आप देखो उसका पिवट पॉइंट यहाँ पे आ गया। इफ आई विल क्लिक द रोटेट ऑप्शन एंड मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। तो ये मैंने इसका पिवट पॉइंट चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये जो इनबिल्ट डिफॉल्ट एक्टर है उनके लिए अगर आप पिवट पॉइंट चेंज कर रहे हो तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन। वन मोर टाइम आई विल रिपीट। सो अगर मुझे पिवट पॉइंट चेंज करना है तो आई विल प्रेस द मिडिल माउस ऑन दिस सेंटर, जो व्हाइट बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा है ना, उसके ऊपर आपको मिडिल माउस प्रेस करना है एंड देन यू कैन चेंज योर पिवट पॉइंट। सो मैंने पिवट पॉइंट यहाँ पे सेट कर दिया एंड राइट क्लिक ऑन दिस, जस्ट मेक श्योर कि आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहे, ठीक है। एंड देन राइट क्लिक ऑन दिस पिवट एंड सेट एज ए पिवट ऑफसेट। तो आपका पिवट यहाँ पे चेंज हो चुका है। नाउ कैन सी हियर। सो इफ आई विल रोटेट, तो इट यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक, पिवट एंड सेट एज ए पिवट ऑफसेट। Okay, so this way I can change the pivot also. Okay, now अभी हमने इसमें जो भी हमारे एक्टर था वो हमने ऐड कर दिया। अब इसे मैंने ये थर्ड पर्सन जो मैप है मेरा, जो सॉरी जो प्रोजेक्ट है मेरा, जो टैम्पलेट्स है वो मेरा थर्ड पर्सन है। तो अगर मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा जो एक्टर है, जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे लैंड हो रहा है, ठीक है। तो सीन में मैंने यहाँ पे आप देखो आउटलाइनर में जाते हैं एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है
जो कि मेरा कैरेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, वो भी एक एक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेयर स्टार्ट, तो वो भी नहीं है यहाँ पे। तो यस, मैं ऐड कर सकता हूँ, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, एंड वी हैव अ ऑप्शन इन माई बेसिक एंड वी हैव अ प्लेयर स्टार्ट ऑप्शन, जस्ट क्लिक। तो आप देखिए यहाँ पे मेरा प्लेयर स्टार्ट जो एज ए कोलाइडर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, उसका शेप दिखाई पड़ रहा है, तो अभी बैड साइड में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि ओवरलैप हो रहा है उसके ऊपर, तो कैरेक्टर मेरा एक बॉक्स के अंदर नहीं बन सकता। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, नाउ कैन सी दिस। तो यस, दिस इज द एक्टर वेयर प्लेयर विल स्टार्ट। तो मैं इसको यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँ, जहाँ पे भी मैं रखूँगा वहाँ से प्लेयर मेरा स्टार्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, आई विल क्लिक। सो आप देखो प्लेयर मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, सो दिस इज द एक्टर, जो कि सिंपली जैसे मैंने बताया कि एक्टर क्या होता है कि आप अपने सीन में जो भी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, है ना, वो आपका एक्टर है, जो कि आपके सीन, गेम एंड इन्वायरमेंट में जो परफॉर्म होने वाला है, दैट इज द एक्टर। वो कोई भी प्लेयर हो सकता है आपका, वो कोई कैमरा हो सकता है, वो कोई लाइट हो सकता है, वो कोई स्टैटिक मेस हो सकता है, वो कोई विजुअल इफेक्ट्स हो सकता है, ठीक है। एंड उसके अंदर हिडन प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर लोकेशन, रोटेशन, स्केल प्रॉपर्टी होती है ना। So this is the actor, and you can add your in scene and you can modify it. Okay. So yes, आप अभी सीन में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करिए, उसमें लेवल क्रिएट कर सकते हो आप, और इस तरह से जो इनबिल्ट चीज़ें हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एकदम कंप्लीटली ब्लैंक सीन क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने एक प्लेटफॉर्म मैंने ऐड कर लिया, प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी बेसिक शेप यानी एक्टर स्टैटिक में इसमें क्रिएट कर रहा हूँ, मैं उसका पिवट पॉइंट चेंज कर सकता हूँ, मैं प्लेयर स्टार्ट कंट्रोल कर सकता हूँ कहाँ से होना चाहिए, मैं गैजमो हैंडल चेंज कर सकता हूँ। ओके, सो यस, अगर आप सीन में अभी यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, वी हैव अ सिनेमेटिक्स, तो सिनेमेटिक कैमरा एक्टर, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिए एक कैमरा भी हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सीन में आप ये चीज़ें सेट कर सकते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ये सब एक्टर है। ओके, तो यस, आप सीन में इस तरह से एक्टर ऐड कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इसके बाद फिर हम देखने वाले हैं, इन नेक्स्ट वीडियो विल सी हाउ टू ऐड द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स एसेट्स हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं अपने सीन में या अपने प्रोजेक्ट्स में, हम कैसे भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एसेट्स हैं, है ना, वो हम कैसे यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो यस, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू। ओके, सो टिल देन जस्ट प्रैक्टिस, एंड कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। ओके।